ایک نہ ایک دن ویسے ہی توڑنا ہے جیسے بھارت نے پاکستان کو توڑا۔ آپ جانتے ہیں 1971 میں بھارت کے سینکوں نے بنگلہ دیش الگ کرا دیا اور وہ الگ ہوا، اس کا درد پاکستان کو ہے۔ تو پاکستان کہتا ہے کہ ہمارا بنگلہ دیش الگ ہوا تو اب ہم بھارت کا جموں کشمیر الگ کریں گے۔ اس کے لیے 71 کے بعد سے جتنے بھی پاکستانی شاسک ہوئے سب نے آتنکواد جموں کشمیر میں ہونا چاہیے، الگاوواد جموں کشمیر میں بڑھنا چاہیے، اس کے لیے کام کیا ہے، دھن بھی دیا ہے اور اپنے سینک بھی دیے ہیں۔ اور وہ آتنکواد اور الگاوواد جو 72 سے چالو ہے جموں کشمیر میں، وہ آج اتنا بڑا ناسور ہے کہ بھارت کے 60,000 سے زیادہ سینکوں کی مرتیو ہو چکی ہے یا شہادت ہو چکی ہے جموں کشمیر کو بھارت میں بنائے رکھے۔ جموں کشمیر بھارت میں رہے، اس کے لیے سنویدھان ہمارے دیش میں بدل کیا گیا۔ ایک آرٹیکل ڈالا گیا 370 جو دنیا کے کسی سنویدھان میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس آرٹیکل کے آدھار پر جموں کشمیر کو ایک دیش کا درجہ دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت کا سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ سنائے جموں کشمیر میں وہ لاگو نہیں ہوتا۔ بھارت کی سنسد میں کوئی بھی قانون بنایا جائے وہ جموں کشمیر میں لاگو نہیں ہوتا۔ ہماری سنسد جب قانون بناتی ہے اس قانون کا پہلا پنا آپ پڑھیں، ڈرافٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں پہلے ہی واقعے میں لکھا جاتا ہے ایکسپٹ ان جموں اینڈ کشمیر۔ یہ قانون بنایا جا رہا ہے جموں کشمیر کو چھوڑ کر۔ ہماری سنسد نے آزادی کے بعد ایسے ہزاروں قانون بنائے ہیں جو آپ کے اوپر لاگو ہیں، میرے اوپر لاگو ہیں، لیکن جموں کشمیر پر لاگو نہیں ہے وہ قانون۔ ان کے قانون ان کی سنسد میں، جس کو وہ اسمبلی کہتے ہیں، وہاں بنتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں بہت سال تک تو جموں کشمیر کے مکھیہ منتری کو صدر ریاست بولا جاتا تھا، مانے جس کو ہندی میں پردھان منتری کہتے ہیں۔ ان کا جھنڈا الگ ہے، بھارت کا جھنڈا الگ ہے، ان کا قانون الگ ہے، بھارت کا قانون الگ ہے، ان کا سنویدھان الگ ہے، بھارت کا سنویدھان الگ ہے۔ پھر آپ بولیے کہ جموں کشمیر از دا انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وہ ہمارا جھنڈا نہیں مانتے، وہ ہمارا سنویدھان نہیں مانتے، وہ ہمارا قانون نہیں مانتے، پھر ہم کہیں کہ جموں کشمیر بھارت کا ابھن انگ ہے۔ یہ کس کو مورکھ بنانے کے لیے کہے؟ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ بھارت کی سرکار آپ کے لیے کوئی بھی خرچہ کرے تو اس کی پائی پائی کا حساب کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا رکھتا ہے، لیکن جموں کشمیر پر ہزاروں کروڑ روپے ہر سال خرچ ہوتا ہے، اس کا حساب کسی کے پاس نہیں۔ میں نے بہت بار سی اے جی کو چٹھی لکھا کہ جموں کشمیر پر پچھلے 60 سال میں ہم نے جو خرچہ کیا ہے اس کا مجھے کلاسیفیکیشن چاہیے، ڈیٹیل چاہیے۔ سی اے جی کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر ہم نے فائنینس منسٹر کو کہا تو فائنینس منسٹری سے اتر ملا کہ جموں کشمیر کا حساب دلی میں نہیں رکھا جاتا، وہ جموں کشمیر میں رکھا جاتا ہے۔ پھر جموں کشمیر کو پत्र گیا ہمارا، وہاں سے واپس آ گیا کہ یہ حساب ہم کسی بھی بھارت واسی کو بتانے کے لیے مجبور نہیں۔ میری چٹھی میرے پاس ہے، وہ مانتے نہیں کہ بھارت کا انگ ہے، ہم زبردستی کہتے ہیں کہ یہ بھارت کا انگ ہے۔ پاکستان وہاں آتنکوادی بھیجتا رہتا ہے، خرافات کرتا رہتا ہے، ان کے لیے پیسہ اپلبدھ کراتا رہتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ پاکستان میں اتنا دم ہے کہ وہ 60 سال سے آتنکوادیوں کو بھیج کے پیسہ خرچ کر کے اس کو چلائے رکھ سکتا ہے، تو آپ سن کر تعجب کریں گے۔ پاکستان کی دم نہیں ہے یہ سب کرنے کی، پاکستان کو یہ سب کرنے کے لیے امریکہ اکساتا رہتا ہے۔ امریکہ ہے جو پاکستان کو پیسہ بھیجتا ہے، وہ پاکستان پیسہ جموں کشمیر میں بھیجتا ہے، اور وہ لشکر طیبہ، جیش محمد، حرکت الانصار، حزب المجاہدین جیسے خطرناک سنگٹھنوں کو پیسہ ملتا ہے، اور وہ پیسے سے سارے دیش میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں، جموں کشمیر میں تو ہوتے ہیں۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، جموں کشمیر میں جتنے آتنکوادی سنگٹھن ہیں اس میں کام کرنے والا ایک بھی آتنکوادی جموں کشمیر کا نہیں ہے، وہ سب ودیش سے آئے ہوئے ہیں۔ بھارت کی آرمی کہتی ہے کہ کچھ 1500 سے 2000 آتنکوادی جموں کشمیر میں ہیں، وہ سب پاکستان سے آئے ہیں، افغانستان سے آئے ہیں یا کہیں دوسرے دیش سے آئے ہیں اور پیسے پر کام کرتے ہیں۔ اور ہماری سرکار بھی کیسی وچتر ہے،
जम्मू कश्मीर में एक संगठन है जिसका नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये छोटी छोटी पार्टियों का एक बड़ा समूह है। इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में एक आदमी है, उसका नाम है यासीन मलिक। कभी आपने उसका चेहरा अगर टीवी पर देखा हो तो इतना दुबला पतला सीकिया हड्डी का आदमी है कि आप फूंक मारो तो उड़ जाए। मैं सच कह रहा हूं। अगर कोई अच्छा खासा हिंदुस्तानी उसको एक झापड़ मार दे तो जमीन पर 3 पलटियां खाए, इतना कमजोर आदमी है। उसको भारत सरकार ने सुपर हीरो बना रखा है। क्यों? भारत सरकार जब भी बातचीत करती है तो यासीन मलिक से बातचीत करती है, और इस चक्कर में अखबारों में नाम आता है, टीवी पे नाम आता है, वो चर्चा में चढ़ता ही चला जाता है। वो चर्चा अमेरिका तक जाती है तो अमेरिका से सीधे पैसा उसको आना शुरू हो जाता है। आप पूछेंगे जी अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है? भारत का जो जम्मू कश्मीर है ये अमेरिका को चाहिए, पाकिस्तान के लिए तो ये बेकार का है। मैं आपको सच बात बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले रखा है उसी को वो संभाल के नहीं रख पा रहा है। जम्मू कश्मीर को क्या है? ये अमेरिका को चाहिए जम्मू कश्मीर। क्यों? जम्मू कश्मीर की सीमा से चीन की सीमा लगी हुई है और अमेरिका और चीन का पुराना झगड़ा है। अमेरिका और चीन एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन है। तो अमेरिका की योजना है कि चीन पर एक दिन हमला करना है, जैसे इराक पर किया। वो हमला करने के लिए अमेरिका के जहाजों को एक ऐसा ग्राउंड चाहिए जहां से हवाई जहाज उड़े और चीन पर जाकर मिसाइल डाले, और वो स्थान जम्मू में है। इसलिए अमेरिका को ये चाहिए। तो अमेरिका बंदूक चला रहा है पाकिस्तान के कंधे पर रख के, और ये बंदूक है कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाए, पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा, पाकिस्तान ये अमेरिका को दे देगा, अमेरिका फिर वहां सैनिक अड्डा बनाएगा और वो सैनिक अड्डा एक दिन चीन के खिलाफ काम आएगा। ये है राजनीति। अब आप बोलेंगे जी अगर ये राजनीति चल रही है भारत को बर्बाद करने के लिए, तो आप पूछेंगे जी हम क्या करें, आप क्या करें? मैं आपको एक विनम्र निवेदन करने आया कि आप क्या कर सकते हैं इस पूरी राजनीति को सारे देश से खत्म करने के लिए और जम्मू कश्मीर को सच में भारत में वापस लाने के लिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जानते हैं क्या? आप में से जितने भी नागरिक यहाँ खड़े हैं, कभी भी जम्मू कश्मीर घूमने के लिए मत जाइए। आप परेशान हो जाएंगे ये सुनकर। आप कहेंगे जी दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है, दुनिया का सबसे खूबसूरत स्थान है, हम जिंदगी भर पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे। और राजीव दीक्षित बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर घूमने मत जाइए। मैं ये बात पूरे जम्मू कश्मीर का 4 बार प्रवास करने के बाद कह रहा हूं। 4 महीने में जम्मू कश्मीर में रहा, मैंने जो देखा वो आपको मैं बता रहा हूं। आप यहां से यात्री और पर्यटक बनकर जब जम्मू कश्मीर जाते हैं तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स जम्मू कश्मीर की सरकार लगाती है, जो भारत में कभी नहीं लगता। वो सारे के सारे टैक्स का पैसा कुछ हाथों से होता हुआ आतंकवादियों तक पहुंचता है। सरकार में उनके आदमी बैठे हुए आतंकवादियों। आप जानते हैं थोड़े दिन पहले हमारे भारत में जम्मू कश्मीर के एक आदमी को फांसी की सजा हुई है, उसका नाम है अफजल गुरु। ये कश्मीर का है और इसने भारत की संसद पर हमला करने का पूरा प्लान बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे दी है, लेकिन उसको फांसी अभी तक नहीं हो रही है। कारण समझते हैं? उस अफजल गुरु को बचाने वाले सरकार में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। और थोड़े दिन पहले तक हमारे भारत में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि अफजल गुरु की जो फाइल है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रोक रखी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रिटायर होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया वो ये कि मेरे पास आज तक अफजल गुरु की फाइल आई ही नहीं, रोकने का तो प्रश्न ही नहीं। तो कहां है वो फाइल? वो फाइल भारत सरकार के गृह मंत्रालय में है, जिसका मंत्री है शिवराज पाटिल, उसके पास वो फाइल है। राष्ट्रपति तक भेजी नहीं गई, क्योंकि भेज दी जाती साइन हो जाता, फांसी हो जाती। तो अफजल गुरु को बचाने वाले लोग भारत के गृह मंत्रालय में गृह मंत्री की हैसियत में है। आप किस आतंकवाद को कुचलना चाहते हैं इस देश में, जरा सोचिए।
मेरा कहना बहुत स्पष्ट है कि आतंकवादियों की मदद करने वाला ही अगर गृह मंत्री है इस देश का, तो कौन से आतंकवाद से आप लड़ना चाहते हैं इस देश में? शिवराज पाटिल के पास फाइल है अफजल गुरु की, और वो फाइल वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है क्योंकि अफजल गुरु को फांसी होगी, और वो फांसी होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अफजल गुरु एक ऐसे समूह का सदस्य है जो आतंकवाद के नाम पर भारत सरकार से पैसा लूट रहा है और जम्मू कश्मीर के नेताओं को बांट रहा है। एक बहुत बड़ा कॉकस और सिंडिकेट बना हुआ है। दिल्ली सरकार से हजारों करोड़ रुपए जाता है जिसका कोई अकाउंटिंग नहीं है। मैंने आपसे कहा वो अफजल गुरु जैसे लोगों के हाथ में ही पहुंचता है, और वो फिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम दूसरे मंत्री और अधिकारियों में बंटता है। वो सारा पैसा आतंकवाद रोकने के नाम पर जाता है। और हम उसमें कैसे मदद करते हैं? हम जम्मू कश्मीर घूमने चले जाते हैं। घूमने में जितना पैसा आप खर्च करके आते हैं वो जाने अनजाने आपका पैसा किसी न किसी तरह आतंकवादियों के हाथ में पहुंच जाता है, क्योंकि सरकार में उनके लोग बैठे। मैंने एक दिन सोचा कि आर्मी जब युद्ध लड़ती है तो उसका पहला टारगेट होता है कि दुश्मन की सप्लाई लाइन काटो, तब युद्ध जीतते। तो मेरे मन में आया कि जम्मू कश्मीर को जो सप्लाई लाइन है, एक तो सरकार की है और दूसरे आप जैसे लोगों की है जो हर साल जून मई के महीने में घूमने के नाम पर वहां जाते हैं, हजारों करोड़ खर्च करके आते हैं। वो पैसा उनको मिलता है और वो पैसे से उनका आतंकवाद पलता है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर का प्रवास करना अगर बंद कर दें, 1-2 साल के लिए ही बंद कर दें, तो समाज में जो पैसा वहां पहुंच रहा है वो बंद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर झक मार के हिंदुस्तान में वापस आ जाएगा, क्योंकि उनकी दम नहीं है। आप पैसा देना बंद कर दीजिए, और ये तभी संभव है जब आप जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए जाना बंद कर दें। हर साल लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी वहां जा रहे हैं, और वहां एक बड़ा मंदिर है वैष्णो देवी का, वहां मत्था टेक कर आ रहे हैं। करोड़ों रुपया उस मंदिर को दान में जा रहा है, और वो वैष्णो देवी जी का श्राइन बोर्ड है, वो पता नहीं कहां पैसा खर्च कर रहा है, आपको कुछ मालूम नहीं। मेरी आपको विनती है, माता जी की पूजा करनी है, दुर्गा माता की तो हुगली में भी है, वैष्णो देवी में ही क्या है? हुगली में भी पूजा हो सकती है। और भारत में तो कण कण में भगवान है, तो जम्मू जाके कटरा जाके वहीं पूजा करना, हमारे यहाँ तो कण कण में भगवान है। तो जिस दिन भारत के 110 कोटि नागरिक एक साथ ये ऐलान कर दें कि हम जम्मू कश्मीर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि आतंकवाद खत्म नहीं होता, मैं आपको गारंटी देता हूं 1-2 साल ज्यादा नहीं, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये तो मेरी आपको विनती है। और दूसरी एक विनती है, अभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में एक नया खेल शुरू हुआ है। वहां के लोग कंधे पर रख के शॉल ले लेके आते हैं और आपके हुगली में बेच बेच के हजारों लाखों रुपए लेके जाते हैं। आप जानते नहीं कि उनमें से कौन आतंकवादी है और कौन सच्चा हिंदुस्तानी। पश्मीने के शॉल 10-10 हजार रुपए के इस हुगली में बेचने के लिए हर साल जम्मू कश्मीर के लोग आते हैं और यहां बेचकर जाते हैं, आपका पैसा वहां पहुंचता है। तो जम्मू कश्मीर से अगर कोई आया हुआ है तो हाथ जोड़कर उसको विनती करिए कि हम तुम्हारा शॉल तब तक नहीं खरीद सकते जब तक कि जम्मू कश्मीर घोषणा ना करे कि हम भारत के अभिन्न अंग हैं। हम नहीं खरीद सकते, बात खत्म हो गई। तो उनका सामान यहां बिकना बंद हो जाए। आप लोग जो करोड़ों की संख्या में हर साल जम्मू और कश्मीर जा रहे हैं, वहां जाना बंद कर दीजिए, आतंकवाद की समस्या हल हो जाएगी।